Welcome student. Hope you all are fine and happy right now and you are not affected by any kind of natural calamity. Now we are going to cover the part number 7 of lesson 8, that is weather and climate and adaptation in the animal. And today's topic we are going to cover is the adaptation in seal. Two important terms, that is hibernation and estivation, and again the adaptation in Siberian crane. So and one more important topic that we are going to cover is the what is migration. So it is our today's topic that we are going to cover. Let's start our topic one by one. First of all, seal. Seal are the mammal that are mainly found in the polar region and they live in that region due to some adaptation. So what are the adaptation that they have? We are going to study about that. First of all, seal have a sensitive whisker. This sensitive whisker help them to give the information that is slightly present into the water current, and with this sensitive whisker they are easily catch their food. So seal are a huge animal that are mainly found in the water. They live into the water, although they come on the land to catch the sunlight. They come on the land to trap the sunlight on their body surface and to get the heat, the warmth of the sunlight. मतलब सील तो पानी में रहने वाला जानवर है, फिर भी ये जमीन पे आता है सूरज की गर्मी को लेने के लिए. इसके पास एक सेंसिटिव विस्कर होता है, जो सेंसिटिव विस्कर इनको छोटे से छोटे वाटर करंट में होने वाले चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. और यदि ये इंफॉर्मेशन किसी एनिमल से रिलेटेड रहा, छोटा एनिमल से रिलेटेड रहा, तो ये आसानी से उस एनिमल को पकड़ करके खा लेते हैं. इससे उनको क्या मदद मिलती है? एनिमल को कैच करने में मदद मिलती है. इवन खुद को भी ये दूसरे बड़े एनिमल से बचा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसिटिव विस्कर. तो सेंसिटिव विस्कर इनको मदद करते हैं उनके शिकार को पकड़ने में और खुद किसी दूसरे एनिमल के शिकार बन जाने से बचने में भी. नेक्स्ट, I have already told you that the body of the seals are aquatic animals, means they live into the water. So they must have to swim into the water, and for that they should have a streamlined body. Streamlined body means body shape as just like a boat. If the body shape is just like a boat, it can swim into the water very freely. And seal have also a streamlined body, means seal can easily swim into the water with the help of the streamlined body. Understood? मतलब इनके पास भी नौका के आकार जैसा बॉडी होता है, जो इनको पानी में आसानी से तैरने में मदद करता है. Understood? Next, one more important thing that I told you about the seal, that seals are mammal, means they feed their breast to their young one. मतलब सील एक मैमल है और वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाता है. दे गिव बर्थ टू देयर यंग वन. वो अपने बच्चा को जन्म देता है, वो अंडे नहीं देते. मैमल के शरीर में बाल होते हैं. दे हैव ए लॉट्स ऑफ हेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, and these hairs are called fur, and this fur make a continuous layer on the surface of the body which cannot allow the entering of the chilled water, and thus protect the seal from, or protect the body from chilled water and get cold. मतलब क्या हुआ? मतलब इन लोगों के बॉडी में बाल का एक लेयर होता है, जो बाल का लेयर पानी को अंदर नहीं घुसने देता और सील को उस चिल्ड ठंड से बचाता है. यानी
जो सील होते हैं, उनका जो हेयर होता है वो उनके बॉडी को पूरी तरह से कवर रखता है और ठंडे पानी को शरीर के अंदर नहीं जाने देता, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठंड से बच जाते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात करते हैं हाइबरनेशन के बारे में। We are going to talk about hibernation. There are certain organisms that are found mostly in the cold region. They undergo a long winter sleep. Suppose in the cold region, you know, there is a winter for 6 to 9 months, and for this in this 6 to 9 months, there is a huge cold. So animals should protect from themselves from this cold, and therefore they go underground into the earth, and they do not come at all for about 6 months to 9 months to protect themselves from that chilled cold. And this long winter sleep means this sleep in the winter season, long winter season is called hibernation. मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने आप को चिल ठंड से बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बहुत कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपने आप को जमीन के अंदर अंडरग्राउंड कर लेते हैं और लगभग 6 महीने से 9 महीने तक बाहर ही नहीं निकलते और अपने आप को बचाते हैं। और उस समय वो क्या खाते होंगे? तो बाकी के दिनों में जब वो गर्मी का मौसम होता है, वो बहुत सारा शिकार करते हैं और खूब खाते हैं और उनके शरीर में मोटा सा लेयर फैट का जम जाता है। और ये मोटा सा लेयर जब वो अंडरग्राउंड होते हैं, जब वो सो जाते हैं, लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, लगभग 6 महीने की नींद में जाते हैं, उस समय वो ये जो फैट जमा होता है उनके शरीर में, वो फैट उनको एनर्जी देता है और उनकी जो सांस लेने की जो गति होती है, ब्रीदिंग का जो रेट होता है, वो भी बहुत रिड्यूस होता है। बहुत स्लोली लेते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर तो उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है, फिर भी वो अपने आप को उस चिल्ड ठंड से बचाने के लिए लॉन्ग विंटर स्लीप, लंबे अरसे तक ज़मीन के अंदर रह करके सोए रहते हैं। हम लोगों के इस रीजन में, यानी कि एशिया वाले रीजन में, मेढक यानी कि फ्रॉग, टोड भी हाइबरनेशन करता है। वो ठंडे के मौसम में ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठंडे के मौसम में आप कभी भी फ्रॉग को नहीं देख पाओगे। विंटर स्लीप। सिमिलरली सम ऑर्गेनिज्म आर देयर विच अंडरगो लॉन्ग समर स्लीप। जिस तरह से बहुत सारे लोग लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो हाइबरनेशन कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं और वहाँ इतनी गर्मी होती है कि वो गर्मी से बचने के लिए गर्मी के मौसम में ही अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं और ज़मीन से बाहर नहीं निकलते इन द हॉट समर सीजन, गर्मी के मौसम में, और उसी के नीचे रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। इसमें कंगारू रैट वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एस्टिवेशन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, दैट इज साइबेरियन क्रेन। क्रेन मतलब बगुला, है ना। एंड साइबेरियन क्रेन मीन्स द crane that are mostly found in the Siberia, and Siberia is the area which is also have a chilled winter season. So the Siberian crane one way to coping with the cold and shortage of food supply during winter in moving from colder place to warmer place. अभी साइबेरियन क्रेन क्या करते हैं अपने आप को विंटर से बचाने के लिए? जब ठंड का मौसम होता है तो वो वहाँ से, जिस जगह पे वो रहते हैं, वहाँ से उड़ते हुए उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी होता है। जैसे साइबेरिया से उड़ करके वो इंडिया में चले जाते हैं, चाइना में चले जाते हैं, श्रीलंका में चले जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उतनी तेज ठंड नहीं होती ठंड के मौसम में, और वहाँ जा करके वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे खाना फूड ढूंढते हैं, फूड ढूंढ करके वहाँ खाना खाते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उनको उड़ना सिखा देते हैं, और बाकी के 6 महीने फिर वो उड़ते हुए अपने देश साइबेरिया वापस लौट जाते हैं। तो ठंड से बचने का इन लोगों ने क्या तरीका अपनाया है? वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, वो वहाँ से दूर चले जाते हैं ताकि उनको ठंड का एहसास ही ना हो। अंडरस्टूड? समझ में आया? So the Siberian can move from one place to another place. The Siberian can move from their native place, that is Siberia, to the different
places which is warmer than Siberia, and they go to that place, they reproduce there, they learn their young one to fly, मतलब उन लोगों को उड़ना भी सिखा देते हैं, learn their young one to fly and live in that place for whole winter. When the chilled winter season in the Siberia get off, they again return back to Siberia. समझ में आया? They undergo the process of molting, that is shredding of the mold. अब देखो साइबेरियन क्रेन जो है वो तो बहुत लंबा दूरी तय करके, लगभग मान के चलो 10,000 से 15,000 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ रही हैं. तो उनके फीदर में जो होता है, उनके जो स्किन के ऊपर में जो फेदर लगा होता है, वो फेदर तो छत विछत हो जाते हैं, टूट जाते हैं. तो भगवान ने उनको क्या दिया है, उसको तोड़ के गिरा देते हैं. जो फेदर टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको तोड़ के गिरा देते हैं और मोल्डिंग करने का मौका देते हैं, यानी कि नए फेदर और लाने में मदद करते हैं. यानी कि उनके लाइफ टाइम में 2 बार फेदर आते हैं जो उनको उड़ने में और उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं. ये फेदर उनको उड़ने में भी मदद करते हैं और शरीर को गर्म में भी रखने में भी मदद करते हैं. चूंकि लंबे डिस्टेंस को कवर करने के कारण ये टूट जाते हैं, तो फिर नया आसानी से आ जाता है. समझ में आया? नेक्स्ट, दे फ्लाई इन ग्रुप टू अवॉइड प्रेडेटर. चूंकि जो ये बर्ड्स हैं क्रेन, ये बहुत कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो कोई दूसरा जानवर इनका शिकार कर सकता है. इसलिए ये लोग ग्रुप में उड़ते हैं ताकि कोई उनका शिकार ना कर सके और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेज ओवर हियर, व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन मीन्स, अभी बताया ना मैंने क्रेन के बारे में, क्रेन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द chilled winter season, and this movement is called migration. Again they return back in the summer season. Understood? So this is the seasonal journey. ये देखो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है. This is the seasonal journey undertaken by many species of the birds and animals to protect themselves from the extreme climatic condition. एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म एक जगह से जा करके दूसरे जगह पहुंचते हैं और वहां सर्वाइव करते हैं कुछ दिनों तक, और फिर अगेन अपने नेटिव प्लेस में वापस चले जाते हैं. और इस मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं. होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल. आप लोगों को समझ में आया? नोट्स तैयार करो, लर्न करो, प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं तो टेस्ट कभी भी ले सकता हूँ. Hope for your better learning. If you have any kind of problem, you can ask me at any time. I am always happy to help you. Bye bye.